ओके, जहां पे नहीं समझेगा वो बता देना। फाइन। सो मैं तुमको बोला था कि जो हमारा सोप है इट हैज गॉट टू पार्ट्स। व्हाट आर दोस टू पार्ट्स? व्हाट आर? Non-polar and polar part. यस, पोलर एंड नॉन पोलर, या फिर ऐसे समझ लो एक ऑर्गेनिक पार्ट है और एक इनऑर्गेनिक पार्ट है। ठीक है, ऐसे समझेगा। फाइन। सो हमारा जो जैसे हमारी जो इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको हमें क्लेंजिंग करनी होती है, बेसिकली दे आर स्वेट, ऑयल्स एंड अदर थिंग्स। सो दे आर जनरली विच पार्ट? दे आर जनरली ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक? Organic part. Yes, they are Unorganic. organic, or we can say they are non-polar. So they will have affinity towards what? They will be soluble in which type of solvent? Organic. Organic. ठीक है? Organic. Will it be soluble in water? Will it be soluble? All these impurities, will it be soluble in No. water? So No. impurities are not soluble No, in water. They are water loving or water hating? Water phobia. water heating. Yes, they are not soluble in water. In fact, they don't want to go near water. ठीक है, तभी तो oil ऊपर तैरने लगता है. So they're not soluble in water. So they are basically water hating. So water hating को हम लोग क्या बोलते हैं? We call them as water stands for Hydrophobia. hydro and phobia stands for fear. So impurities are basically, इसको अगर हम proper language में बोलें, so we will say impurities are Hydrophobic. yes, हाइड्रो वाटर के लिए एंड फोबिक फियर के लिए. दे आर वाटर हीटिंग. But it is a organic. What did you say? But water is the organic. Water is not an organic thing. What is an organic substance? What is a definition of an organic substance? What And is it is made of carbon and hydrogen. Yes, it is made up of carbon and hydrogen. And दूसरा ये कि which is made from living beings, organisms. वाटर के ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. अगर ऐसा होने लगे तो हमारी वाटर वाली प्रॉब्लम, वाटर क्राइसिस ही खत्म हो जाए अगर हम खुद ही बनाने लगे तो. So tell me, water is organic or non-organic? Now it can be dissociated into iron. इनऑर्गेनिक. समझा ना भी रीजन? एयर क्या होगी, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? Organic. अभी रीजन क्लियर हो गया? अभी रीजन क्लियर हो गया? किसको डाउट था? किसको डाउट था? रीजन क्लियर हुआ? प्लीज स्पेसिफाई ऑल्सो सो दैट वी कैन मूव अहेड. Yes, I'm clear. ओके, ठीक है. सो लेट्स मूव फर्दर. डेफिनेशन वाइज ही चलो, ज्यादा वो नहीं. ठीक है, अब जो ये सोडियम या फिर अभी मैंने तुम्हें बताया NaCl इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर. जो ये सोडियम और K पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये कैसा होगा? वाटर लविंग या वाटर हिटिंग? This is ionic part. So this is soluble in water or it is water hitting? Soluble. This is going to be water loving. Soluble in water. Soluble in water. क्योंकि हमने किया भी NaCl is soluble in water. So ionic part is soluble in water. So this ionic part will be called as, it is going to be water loving. So ionic part, इसको हम लोग कैसे टर्म करते हैं, इज हाइड्रो अगेन स्टैंड्स फॉर वाटर. एंड यहाँ पे फोबिया था, यहाँ पे फिलिक मतलब लविंग. दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक. कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली हमारे सोप में दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? एक हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट. मतलब जो हेड है दैट इज द हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पार्ट है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है. ठीक है. सो व्हेन वी डिसॉल्व सोप इन वाटर, व्हेन वी, जैसे हम सोप को डिसॉल्व करते हैं, व्हेन वी डिसॉल्व सोप इन, क्या हम हमारी इम्प्योरिटीज सिंपल वाटर से निकल जाएंगी? कैन द इम्प्योरिटीज बी रिमूव्ड बाय वाटर simply?
Can they be removed? No, ma'am. They cannot be removed by plain water. Can you give the reason? क्योंकि वो उसमें dissolve ही नहीं करेगा, सर उल्टा दूर भाग जाता है. That is why we need soaps. Can you get the reason? Can you get the reason? Yes, ma'am. ठीक है, hence we need soaps. Fine. और अब तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है because of the COVID scenario going now, so you can understand it more better. You cannot just clean with plain water. So हमें soaps चाहिए ही होते हैं, ठीक है? तो जब हम soap को normal water में mix करते हैं, तो soap जैसे ये हमारा vessel है, जिसके अंदर okay, so see this is a vessel which is containing water. Fine. So when you will add soap to it, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हेड तो सोप में रहना चाहता है बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक, बट टेल क्या करेगी? वो सोप में रहना चाहेगी कि नहीं रहना चाहेगी? टेल मी, विल द टेल will be in water or not? No, ma'am. No. So when you dissolve soap in water, तो ये ऐसे अलाइन कर लेता है अपने आप को, एंड दैट इज द रीजन. तुमने देखा भी होगा, ये पुट बकेट में सोप डालते हो तो बबल्स बनते हैं ना? बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं कि नहीं बनते हैं? अब प्लीज, इतना तो सबने किया होगा. और तुमने वो Yes, ma'am. एक वो जो टॉय आता है बबल वाला, वो भी यूज किया ही होगा सबने. तो सोप को अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में डालते हैं तो क्या होता है? सोप सारा का सारा ऊपर चला जाता है. यू माइट हैव सीन ऑल द बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द अपर सरफेस. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है. अब तुम अगर सोप की क्वांटिटी अगर सोप की क्वांटिटी को बढ़ा दो तो, ठीक है, मॉडरेट क्वांटिटी में डालो अगर सोप को, तो क्या हो जाएगा? सरफेस तो थोड़ा सा ही है, सरफेस इज लिमिटेड, तो भाई कितने पार्टिकल सरफेस पे आएंगे? कम पड़ जाएगी ना जगह? कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना? पड़ जाएगी. तो इसलिए क्या करेंगे, जब हम मॉडरेट क्वांटिटी में सोप डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो फिर भी पानी में नहीं रहना चाहता, तो वो सब्स्टिट्यूट कैसे ढूंढेगा? सरफेस पे तो चला ही जाएगा. उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ लाइक दिस, कि जो ये इस टाइप से एक सर्कल बना लेता है, तभी बबल्स बनते हैं. क्योंकि वाटर हेटिंग पार्ट जो है वो एकदम अंदर छुप जाएगा, और वाटर लविंग पार्ट जो है वो क्या करेगा? वो वाटर में रहेगा. तो इस टाइप से बबल फॉर्मेशन हो जाता है. कैन यू गेट इट? स्मॉल क्वांटिटी में डाला तो ऊपर चला जाएगा सरफेस के, और ज्यादा क्वांटिटी में डाला तो ज्यादा बबल्स बनते हैं. बनते हैं? Yes, ma'am. ठीक है. सो ये जो बबल मैम, बट बबल्स कभी भी वाटर के मिडिल में नहीं फॉर्म होता. तो वो लाइट है तो ऊपर जाएगा ना, बिकॉज इट इज वाटर हीटिंग. वो तो मैंने बताने के लिए बताया कि सरफेस पे ऑलरेडी है, सरफेस पे ऑलरेडी है, पहले बबल सरफेस पे ही जाते हैं. लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में सोप होता है तो अंदर भी बनते हैं, वो तुम्हें दिखते नहीं है क्योंकि तुम बकेट को ट्रांसपेरेंट नहीं रखते हो. ठीक है. वो ऊपर की तरफ क्लाउडिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि दे आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ वाटर, Yes, ma'am. बट सरफेस एरिया लिमिटेड है. तो ऊपर तो पहले पहुंच गए, उसके बाद में बाकी जो बबल्स बने वो ऊपर की तरफ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? यस और Yes, नो ma'am. प्लीज, है ना? तो सरफेस एरिया लिमिटेड होने की वजह से कम अमाउंट का रहेगा, तो सब सारे के सारे सरफेस पे चले जाएंगे. उसके बाद में वो बबल जैसा बनाएंगे, और वो बबल जो है तो क्या रहेगा? मतलब वो भी थोड़ा ऊपर ही फ्लोट कर रहा होगा, बिकॉज इसके अंदर एयर होगी, तो ये भी फ्लोट कर रहा होगा. इज इट क्लियर? शैल आई मूव अहेड? अभी क्लियर हुआ तुम्हारा प्रॉब्लम? Yes, ma'am. ओके. अभी क्या है, फिर हमारे पास आ गई हमारी इम्प्योरिटीज. जैसे हमने अपनी स्किन को एक्सपोज किया या फिर किसी क्लॉथ को एक्सपोज किया जिसके अंदर है इम्प्योरिटीज. तो सपोजिंग दिस इज सम इम्प्योरिटी. ठीक है. अब इम्प्योरिटी कैसी होती है? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक?
ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। तो क्या होता है, सोप उसको सराउंड कर लेता है। कैसे सराउंड करता है, क्योंकि इसको तो ऑर्गेनिक पार्ट चाहिए, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो सोप उसको ऐसे अलाइन कर लेता है, फिर से उसको सराउंड कर लेता है इस वे में। एंड दैट इज द रीजन, जैसे ही तुम क्लॉथ डालते हो बबल्स खत्म हो जाते हैं, बिकॉज वो सब इम्प्योरिटीज को सराउंड करने लगते हैं। ठीक है, इस वे में कि मतलब ये वाला पार्ट इसको नहीं छोड़ेगा और ये वाला पार्ट इम्प्योरिटी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, टेल will attract towards impurity, whereas head will get attracted towards water. Can you see this? Can you see this? ठीक है, और ये फोर्स इतना स्ट्रांग होगा, ये इतना स्ट्रांग होगा कि टेल एक तरीके से इम्प्योरिटी से इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कर चुकी है कि वो इसको कंपेल करेगी कि टेल will come, the impurities will come with the tail and it will leave the surface. Like surface क्या मतलब क्लॉथ को छोड़ देगी या फिर हमारी स्किन को छोड़ देगी। तो impurity have strong affinity, strong liking, affinity means liking, towards tail. Okay, or you can say towards the hydrophobic part, hence leaves the surface. surface यहाँ पर क्या है हमारा, हमारी स्किन हो सकती है या फिर हमारा क्लॉथ हो सकता है। तो इट विल लीव द सरफेस एंड कम विद दिस इन वाटर। तो इसीलिए क्या होता है, व्हेन यू पुट योर सोप इन वाटर, इनिशियली तो बबल्स होते हैं, फिर क्लॉथ डालते हैं तो बबल्स खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो इम्प्योरिटीज को सराउंड करने लगते हैं जहां जहां मिलती हैं। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन, योर स्किन बिकम्स क्लीन एंड योर वाटर बिकम्स ब्रैकिश। ब्रैकिश मतलब गंदा सा। मैम बट समटाइम्स जो क्लोथ होता है मैम उसके सरफेस पे भी बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। हाँ, तो वो इसी वजह से फॉर्म हो रहे हैं ना, क्योंकि वो इम्प्योरिटी लगी हुई है वहां पे, वो तुम्हें नहीं दिख रही है, माइनर सी इम्प्योरिटी है, तो उसको बबल कवर कर रहा है ना आकर के। ये देखो बबल बना कि नहीं इम्प्योरिटी के साथ, इम्प्योरिटी के सराउंड करके ही बबल बना ना। तो तुम्हें नहीं दिख रही है वो इम्प्योरिटी, लेकिन होगी वहां कोई, हमारी बॉडी का ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से उसने सराउंड कर लिया। Okay, like dissolves like, this is like portion and this is the that portion. So what is the problem, the head does not want to leave water and impurity does not want to leave the tail. तो रास्ता क्या निकला, impurity अपना surface छोड़ करके water में निकल जाएगी and your surface will become clean, मतलब हमारा skin या cloth clean हो जाएगा. So this is the cleansing action of soap. Can you get the stages? Can you get the stages in cleansing? How does it happen? Yes, ma'am. ठीक है, so like dissolves like वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर जाता है। ओके फाइन। एंड जो ये क्लस्टरिंग हुई है ना, जहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, देखो एक हेड और एक टेल का मतलब एक मॉलिक्यूल था ना, चेक करो, मैंने तुम्हें बताया था एक हेड और एक टेल रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल और मेनी मॉलिक्यूल्स। One head and one tail represents one molecule or many molecules? Many molecules. One head and one tail is representing, see this is one molecule or many molecule? This is a single molecule, a macromolecule. Macromolecule तो समझते हो ना, big molecule. So tell me, is it a big molecule or many molecules? This is a single molecule or many molecules? Come on, answer me. Arey, wild attempt log. Single molecule. Yes, this is a single molecule, or you can say it is a big molecule, so I can call it as a macromolecule. और मुझे बार बार इस macromolecule को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इस वे में रिप्रेजेंट किया था। तो ये हेड और टेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल्स या मेनी मॉलिक्यूल? Single molecule. Yes, it is representing a single molecule. लेकिन यहाँ पर जब बबल फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, many molecules come together or it is only a single molecule? Bubble And many molecules come together. Yes, so bubble formation is
called as, when many molecules come together, okay, so then there is a we can say associated molecule. Associated, you know what do you mean by associated? Do you know what is you mean by associated? No, ma'am. तुमने कभी टर्म नहीं सुना दिस एंड दिस एसोसिएट्स? एसोसिएट्स का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारे लोग A एक plus साथ B मिल plus गए, C. बहुत मैम सारी सुना था कंपनीज, पर भूल गए। हाँ बहुत सारी जोड़ना। कंपनीज एक साथ मिल गए, ठीक है। सो एसोसिएट्स मींस कंबाइनिंग टुगेदर। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, एंड दिस, इसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। मिसल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सोप वाली स्टेज में जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सोप डालेंगे तो उसको क्या होगा, बबल फॉर्मेशन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेनी मॉलिक्यूल्स आर कमिंग टुगेदर, सो बबल फॉर्मेशन इज व्हाट स्टेज? बबल फॉर्मेशन में भी सोप अपने आप को छुपाना चाहता है वाटर से, तो वो ऐसे अंदर क्लस्टर बना लेता है, छुप जाता है वाटर से, तो ये भी क्या है, इज इट अ मिसल फॉर्मेशन और नॉट? आर Yes, दे ma'am. गेटिंग एसोसिएटेड और नॉट? Yes, ma'am. Yes, so this is also, bubble formation is also a stage of Yes, ma'am. micelle formation. Even when impurities are getting surrounded by soap, impurities getting surrounded by soap is also which category? That is also a which formation? That is also a micelle formation. Can you get it? This is also a stage of micelle formation. Yes or no? Yes or no? This is also a stage of Yes, micelle ma'am. formation. ठीक है, तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं मिसल फॉर्मेशन क्या होता है, तो वही मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ओके, देन अभी तुमने सोप्स समझा, सोप्स के बाद में एक और चीज तुम लोग सुनते हो ना, डिटर्जेंट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड अ डिटर्जेंट? नॉर्मल लैंग्वेज में बता दो। देखो ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, मैं तुम्हें घर की चीज नहीं बता रही हूँ, इट इज द सिलेबस, पार्ट ऑफ द सिलेबस, एंड देयर हैव बीन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस in your NTSC exam. So tell me, what do you mean by detergent? Type of soap only. Type of soap, but उसमें difference क्या है एक soap में और detergent में? Ma'am, it is much stronger. Yes, it is much more stronger. Yes, when you want a good cleansing action, या फिर you know what is hard water? Yes, ma'am. हार्ड वाटर It में has ऑलरेडी carbonates of सॉल्ट्स, हाँ magnesium. ऑलरेडी सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, तो सोप उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाता, स्कोप ही नहीं बचा उसके और डिजॉल्व होने के लिए। ओके, सो सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, सोप्स आर नॉट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी है खाना खाने की वो ऑलरेडी फिनिश हो रखी है, बिकॉज उसमें ऑलरेडी सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। सो सोप्स डू नॉट डिजॉल्व इन हार्ड वाटर, और डिजॉल्व नहीं करेंगे तो क्लेंजिंग एक्शन करेंगे क्या? No. बिल्डेड है तो क्लेंजिंग एक्शन बिकम्स इनइफेक्टिव, तो उस केस में हम लोग डिटर्जेंट्स को यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट्स आर व्हाट, नथिंग डिफरेंट, दे जैसे वो सोडियम सॉल्ट्स थे, सो दीज आर व्हाट, दे आर योर सल्फोनिक सॉल्ट्स, sulfonic salts of fatty acids, of fatty acids. Okay, like you will take any kind of this oil, you'll put H2SO4 in this सल्फोनिक सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे, सो अगेन यहाँ से H एंड यहाँ से OH टुगेदर, फाइन, एंड यू विल हैव
RCOOSO4. So you know your acids have better corrosive behavior. Using a sulfonic acid, or you can see using a sulfuric acid, increases the solubility. This is a detergent. Okay, so increases solubility in water, hence cleansing action will work out. Okay, so can you get the difference between soap and water? Sorry, soap and detergent. Yes, ma'am. Fine. And Ma'am, I have a doubt that why detergents are non-biodegradable. what? Ma'am, why detergents are non-biodegradable? Because they are containing sulfuric acid. Again, yes, that is also a good point. They are containing sulfuric acid, so detergent are bad for the environment. Because whatever your soapy water it is, where will it go? In your drains? कहाँ जाता है? Where does all that water goes? Sewer. Yes, and then it goes into your water bodies. Okay, now water bodies are already containing aquatic life, और उनका एक particular pH होता है, pH of water के जैसा होता है, which is suitable for for aquatic life. But if you take soapy water, and especially if you say detergent containing water, so detergent containing water means it will have sulfur content. Now sulfur content means acidic content or basic content. Acidic content. Yes, and even if you are using soapy water, ठीक है, so वो basically soapy water will give you Na positive ion which is required in water. Minerals के लिए हमें चाहिए होता है, तो इसलिए problem नहीं है. But when you talk about detergents, it is like it is containing sulfur content. Sulfur content will go into the water. It will make it what? Sulfur will make it what? Sulfate ion will make it what? Won't it make it acidic? Won't it make it acidic? Yes or no? Yes, ma'am. And if Yes, it is ma'am. making it acidic, is it good for aquatic life or not good? No, Not good ma'am. for the aquatic life. Yes, so Not that is good. why we say they are harmful Because for. pH value of water will increase. Yes, it will become more corrosive. Okay, it is not good for this. That's why we say they are not good for environment. Is your doubt answered? Yes, ma'am. Okay, so that is the reason. That's why even it is harsh on your skin as well. You might have experienced that particular thing, because again it is corrosive, so you would start getting, you know, blisters or something. That's what. Clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So now the last reaction for your organic, that is oxidation and reduction. Now first I'm doing oxidation. What do you mean by oxidation? You've already done this. Addition of oxygen and removal of hydrogen. So it is addition of oxygen and removal of hydrogen. So supposing if I take like मैंने use किया C2H6 और इसमें अगर मैंने oxidation कराया, तो बताओ addition of oxidation मतलब oxygen atom हम अगर add करेंगे तो इसी किसमें convert होगा? मतलब add oxygen, remove hydrogen, it will convert into what? C2. Yes, tell me a functional group which contains oxygen. Ketone group. Any other? Carboxyl. Aldehyde. Any other?
Ma'am, alcohol. Alcohol, yes. So Carboxylate. if you use a small oxidizing agent, a mild oxidizing agent, it converts into alcohol. So see, why did not हमने कीटोन में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? क्योंकि कीटोन में अगर हम कन्वर्ट करते या एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कम हो रहे हैं. 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड का नाम लिखो. So it will come like this. Count the number of carbon and hydrogen. Compare the number of carbon and hydrogen in this. 2 carbon and 4 hydrogen. Yes. So this is a more intense oxidation. Yes, I wanted to go for a mild oxidation. Mild oxidation means simple addition of oxygen. When I want to go for a much more stronger oxidation, okay, moderate oxidation. So moderate oxidation में क्या होगा? Your oxygen will be added plus एक step और ज़्यादा कि hydrogen भी remove हो रहा है. देखो hydrogen भी remove हो रहा है. One step further. Can you check it? Can you check it? Yes, ma'am. एंड अगर हम लोग फर्दर और ऑक्सीडेशन करें मतलब और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करें या फिर इसी का ही हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनेगा? एक और ऑक्सीजन एटम ऐड करो. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? What is the functional group which contains 2 oxygen atoms? Which is the Carboxylic acid. yes, so then it converts into carboxylic acid. ठीक है, सो चेक करते जाओ. फाइन. तो देखो जितना इंटेंस ऑक्सीडेशन कराओगे वो स्टेप्स में मूव करता जाएगा. और इसका लास्ट स्टेप क्या होता है? अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया सो इट कन्वर्ट्स इनटू CO2 वेयर ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड. Strongest oxidation. These are the stages of oxidation. See, can you remember what was oxidation? Yes, ma'am. Yes, तो अब ma'am. देखो एक एक स्टेप वाइज हमने किया. पहले हमने क्या किया? सिर्फ एडिशन किया ऑक्सीजन का. उसके बाद हमने हाइड्रोजन को भी रिमूव कर दिया. उसके बाद हमने एक और ऑक्सीजन को हटाया. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? सारे के सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया. सो एक स्टेप में पहले क्या करते हो? माइल्ड में क्या करते हो? स्मॉल हाइड्रोजन स्मॉल ऑक्सीडेशन करना होता है तो क्या करते हैं? What do you do in first step? First stage में क्या? Just add oxygen. Yes. So that is generally alcohol. Okay. Second step में क्या करोगे? Second stage में what will you do in second stage? What do you do in second stage? You're removing hydrogen. Then again third stage में क्या कर रहे हो? Third stage में क्या कर रहे हो? Come on, speak up fast. Carboxylic acid. Everyone, please answer me. What do you do in first stage? What is happening? Compare this and this. Alcohol. Alcohol means what is happening? You are adding hydrogen, you are adding, removing oxygen. What is happening? Ma'am, only adding oxygen. Yes, Only only adding. addition of. If I move Adding oxygen. one more step, what will happen? Removal of hydrogen. Then in another step, Removal of hydrogen. Removal of in hydrogen. another step, again addition of oxygen, and in another step, last step, Removal of hydrogen. No hydrogen. Only yes, no hydrogen, only CO2. So these are the steps of oxidation. ठीक है, डिपेंड करेगा कि तुम कौन से ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हो. तो मतलब हमारे पास पहले क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है. पहली स्टेज में अगर हमने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? पहली स्टेज में किसमें कन्वर्ट हुआ था? पहली स्टेज में किसमें कन्वर्ट हुआ था? Just Alcohol. add oxygen. So which is a functional group which contains oxygen? Alcohol. Then if you remove the hydrogen atom, तो saturation. Yes, तो saturation पे फर्क पड़ेगा. That means it will convert into, in next step it will convert into Ketone.
aldehyde. Yes, and in the next step, add more oxygen, it will convert into, Carboxylic acid. yes, ठीक है, and last stage, yes, and last stage क्या होगी, it will convert into Carbon dioxide. और इसी को अगर हम रिडक्शन के टर्म्स में पढ़ें तो रिडक्शन के टर्म्स में सपोजिंग आई एम स्टार्टिंग विद कार्बोक्सिलिक, यू नो व्हाट इज रिडक्शन नाउ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और यू कैन से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो इफ आई टेक कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका रिडक्शन कराएं तो किस में कन्वर्ट होगा, ऑन रिडक्शन इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, इसका उल्टा चलो, just move opposite. Aldehyde. Yes, and if I go for the reduction of aldehyde, it will convert into, Alcohol. and if I go for the Alcohol. reduction of alcohol, it will convert into Hydrocarbon. Yes. Then hydrocarbon. And in all these cases, what is common? The number of carbon atom देखो change नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेंज हो रहे हैं. देखो नहीं चेंज हो रहे हैं ना, Yes, ma'am. ठीक है. Ma'am, can we reduce Yes, carbon ma'am. dioxide also? No, generally we cannot. But in reduction, why hydrogen is also reduced? What hydrogen is also reduced?